Hello kids, welcome to the class of computer class 4. The chapter number is 8. More on PowerPoint 2016. Learning outcomes. At the end of this chapter, students will be able to insert a new slide and delete a slide. So kids, इस chapter को complete करने के बाद आप किन outcomes के बारे में learn करेंगे? You will learn about how you will insert a new slide and delete a slide in the PowerPoint 2016. Format text in a slide. आप कैसे जो है slide में जो है text को format कर सकते हो. Insert pictures from a file or internet. And आप file में से और internet में से कैसे जो है pictures को insert कर सकते हो. Apply color to the background of a slide. एंड यू विल लर्न कि एक स्लाइड के बैकग्राउंड पे कलर को कैसे अप्लाई किया जाता है. सो किड्स, लेट्स स्टार्ट द लेसन. वार्म अप. Rohan and Sohan have learnt about MS PowerPoint 2016, but Sohan doesn't remember the components of MS PowerPoint window. Help Sohan to recall. So kids, इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे? आपको जो है PowerPoint विंडो की पिक्चर गिवन है एंड इसमें क्या है, रोहन एंड सोहन ने जो है लास्ट ईयर जो है MS PowerPoint के बारे में लर्न किया था, बट अब जो है सोहन जो है भूल चुका है कि MS PowerPoint विंडो में क्या क्या कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं. सो आप जो है इस पिक्चर के अंदर उसको लेबल करेंगे. टीचर्स नोट. Assist students with labeling the components of MS PowerPoint 2016. Also ask them to recall why PowerPoint is a useful presentation tool. So kids, this activity will be performed by a teacher in your classroom. Hi friends, in the previous chapter we learnt about the uses of MS PowerPoint. Now let's learn using the slides in PowerPoint. So kids, इस chapter में जो हम PowerPoint के slides की uses के बारे में पढ़ेंगे. You are already familiar with how to make slides and add text. You will discover more about PowerPoint's advanced features in this chapter. Opening a presentation. Follow the given steps to open the saved presentation. So kids, आप जो है एक saved presentation को कैसे open कर सकते हैं उसके steps देखते हैं. Steps 1. Click on the File tab. सबसे पहले आप File tab पे click करेंगे. 2. Select the Open command from the left pane. And kids, आप जो है left pane में से जो है Open command को select करेंगे. 3. Locate and select the presentation you want to open. And kids, जिस प्रेजेंटेशन को आप ओपन करना चाहते हैं आप उसे लोकेट करेंगे एंड सेलेक्ट करेंगे. 4. क्लिक ऑन दी ओपन बटन एंड उसके बाद जो है आप ओपन बटन पे क्लिक करेंगे. एंड किड्स, इधर जो है आप ओपनिंग और प्रेजेंटेशन की पिक्चर को देख सकते हैं. आप जो है ओपन पे जाके जो है वहाँ से जो है अपनी सेलेक्टेड प्रेजेंटेशन को ओपन करेंगे. इंसर्टिंग अ न्यू स्लाइड. Any number of slides can be inserted in a presentation. Follow the given steps to insert a new slide. So kids, हम जो है n number of slides जो है अपनी presentation में add कर सकते हैं and हम in between slides भी add कर सकते हैं. Do you know we can create a duplicate slide by pressing Ctrl+D combination. So kids, अगर हमें एक स्लाइड का उसका डुप्लीकेट बनाना है so हम जो है Ctrl+D की कॉम्बिनेशन का यूज करके कर सकते हैं. Steps 1. Click on the Home tab. So सबसे पहले जो आप Home tab पे क्लिक करेंगे. 2. From the Slides group, click on the New slide. उसके बाद किड्स आप जो है Slides group में से जाके जो है क्लिक करेंगे New slide पर. 3. Select the type of slide you want. उसके बाद जो आप जिस टाइप की स्लाइड चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट करेंगे. 4. A new slide is inserted and आपकी जो स्लाइड है वो इंसर्ट हो जाएगी. Alternatively, you can click on the Insert New Slide. So kids, alternatively अगर आप ये steps follow नहीं करना चाहते तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो है Insert टैब पे जाके जो है वहाँ पे New Slide पे क्लिक कर सकते हो. And kids, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं Inserting a New Slide. सबसे पहले जो आप Insert टैब पे जाएंगे and वहाँ पे जाके जो है आप New Slide पे क्लिक करेंगे. Let me answer. How do you realize that something is irrelevant and needs to be deleted?
So kids, you will write the answer of this question on your own. Deleting a slide. So kids, अब हम slide को कैसे delete कर सकते हैं? Some slides may look irrelevant, so we can delete them in the normal view or in the slide sorter view. So kids, कुछ slides ऐसी होंगी जो irrelevant होंगी, हमारे use की नहीं होगी, तो हम जो है normal view में या slide sorter view में जाकर जो है slide को delete कर सकते हैं. Follow the given steps to delete a slide. Steps 1. Choose the slide you want to remove. सबसे पहले जो है जो slide आप remove करना चाहते हैं उसे choose करेंगे. 2. Right click on it in the outline pane. उसके बाद किड्स आप जो है उस पर राइट क्लिक करेंगे इन दी आउटलाइन पेन पे. 3. From the shortcut menu choose the delete slide option. एंड किड्स फिर आप जो है शॉर्टकट मेन्यू में से डिलीट स्लाइड ऑप्शन को चूज करेंगे. 2. The slide will be deleted. एंड किड्स उसके बाद जो है स्लाइड जो है जो आपने सेलेक्ट करी थी वो डिलीट हो जाएगी. एंड किड्स इस पिक्चर में आप देख सकते हैं अबाउट डिलीटिंग अ स्लाइड. सबसे पहले जो आप होम पे जाएंगे एंड उसके बाद जो भी स्लाइड आप चूज करना चाहते हैं उस पर राइट क्लिक करेंगे एंड फिर आप सेलेक्ट करेंगे डिलीट अ स्लाइड ऑप्शन. फॉर्मेटिंग टेक्स्ट इन अ स्लाइड. मेकिंग चेंजेस इन द टेक्स्ट अपीयरेंस टू मेक इट मोर एक्साइटिंग एंड अटेंशन ग्रैबिंग इज रेफर्ड टू एज फॉर्मेटिंग. सो किड्स अब जो हम स्लाइड में कैसे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं टेक्स्ट की वो देखेंगे. एंड फॉर्मेटिंग का क्या मतलब होता है, जब किसी टेक्स्ट की अपीयरेंस को चेंज करना हो, उसमें काफ़ी सारे चेंजेस लाने हो सो दैट वो जो है ज़्यादा रीडेबल लगे और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे, उसको हम कहते हैं फॉर्मेटिंग. वी कैन यूज द फॉलोइंग फीचर्स टू फॉर्मेट स्लाइड्स इन अ पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन. फॉन्ट स्टाइल एंड फॉन्ट साइज. सो किड्स टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करने के लिए सबसे पहले जो हम फॉन्ट स्टाइल का और फॉन्ट साइज का यूज करेंगे. Follow the given steps to change the size of the selected text. Steps 1. Select the text you want to change. So kids सबसे पहले जो आप उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे जिसमें आप चेंजेस करना चाहते हैं. 2. On the home tab in the font group, click on the drop down arrow next to the font size box. So kids उसके बाद जब आप होम टैब पे जाके फॉन्ट ग्रुप में क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन एरो को जो कि आपकी नेक्स्ट है फॉन्ट साइज बॉक्स के, यानी फॉन्ट साइज बॉक्स के नेक्स्ट पे आपका जो एक ड्रॉप डाउन एरो है उसको आप क्लिक करेंगे. 3. क्लिक ऑन द डिजायर्ड फॉन्ट साइज एंड द टेक्स्ट साइज विल बी चेंज्ड. एंड किड्स उसके बाद जो है जो भी डिजायर्ड टेक्स्ट का साइज चाहते हैं वो आप वहाँ से सिलेक्ट करेंगे एंड आपका जो है साइज चेंज हो जाए. एंड किड्स यहाँ पे जो है आप पिक्चर को देख सकते हैं दिस इज फॉन्ट साइज. आप सबसे पहले जो है होम टैब पे जाएंगे, उसके बाद आप जाएंगे फॉन्ट ग्रुप पे एंड फॉन्ट ग्रुप पे जाके ये आपका ड्रॉप डाउन एरो है एंड आप इसमें से डिजायर्ड साइज को सेलेक्ट करेंगे. लेट मी आंसर. व्हाट इज द परफेक्ट फॉन्ट साइज अकॉर्डिंग टू यू? सो किड्स यू विल राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन. Follow the given steps to change the style of the selected text. So kids आप selected text का style कैसे change कर सकते हैं वो देखते हैं. Steps 1. Select the text you want to change. सबसे पहले आप select करेंगे. 2. On the home tab in the font group, click on the drop down arrow next to the font style box. फिर kids आप जो है home tab पे जाके font group पे जाएंगे एंड वहाँ पे जो है फॉन्ट स्टाइल बॉक्स के साइड में जो है ड्रॉप डाउन एरो होगा उस पर क्लिक करेंगे. 3. मूव द कर्सर ओवर द अवेलेबल फॉन्ट स्टाइल्स एंड वहाँ पे जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट को ओपन करने के बाद बहुत सारे स्टाइल्स के आपके पास ऑप्शंस आएंगे एंड इसके ऊपर जो है आप कर्सर को मूव करेंगे. 4. सेलेक्ट द डिजायर्ड फॉन्ट स्टाइल एंड जो भी स्टाइल आप चाहते हैं उस पर आप सेलेक्ट करेंगे. 5. द फॉन्ट स्टाइल विल बी अप्लाइड टू द सेलेक्टेड टेक्स्ट एंड उसके बाद आपके सिलेक्टेड टेक्स्ट पे जो है आपका फॉन्ट स्टाइल जो है चेंज हो जाएगा. एंड किड्स इस पिक्चर में आप देख सकते हैं फॉन्ट स्टाइल को. सबसे पहले आप होम पे जाएंगे, होम पे जाने के बाद आप जाएंगे फॉन्ट ग्रुप्स में एंड यहाँ पे जो है आपका ड्रॉप डाउन एरो है एंड ये जो है नंबर ऑफ आपके पास फॉन्ट स्टाइल्स है, इसमें से जो डिजायर्ड वन होगा आप उसको चूज करेंगे. चेंजिंग फॉन्ट कलर. Follow the given steps to change the font color. So kids आप font color कैसे change कर सकते हैं वो देखते हैं. Steps 1. Select the text.
2. On the home tab, click on the drop down arrow next to the font color box. उसके बाद जो आप होम टैब पे जाएंगे एंड फॉन्ट कलर बॉक्स के साइड में जो ड्रॉप डाउन एरो है उस पर क्लिक करेंगे. 3. चूज द डिजायर्ड कलर. फिर आप अपना डिजायर्ड कलर चूज करेंगे. 4. द फॉन्ट कलर विल बी अप्लाइड टू द सिलेक्टेड टेक्स्ट एंड चूजन कलर जो है आपके टेक्स्ट पर जो है अप्लाई हो जाए. एंड किड्स हियर आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉन्ट कलर की पिक्चर को. होम टैब पे आप जाएंगे एंड यहाँ पे आपके पास आइकन है एंड यहाँ पे आपके कलर ऑफ लिस्ट ओपन हो जाएगी. एडिंग पिक्चर्स. पिक्चर्स हैव मोर विजुअल इम्पैक्ट देन द टेक्स्ट. PowerPoint lets you insert images और pictures in your presentation. So kids, आप अपनी प्रेजेंटेशन में पिक्चर्स को ऐड करते हैं सो दैट वो जो है ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगती है एज कम्पेयर टू द टेक्स्ट. एंड MS PowerPoint आपको अलाउ करता है कि आप जो है पिक्चर्स को और इमेजेस को इंसर्ट कर सको अपनी प्रेजेंटेशन में. फॉलो द गिवन स्टेप्स टू इंसर्ट एन इमेज फ्रॉम अ फाइल. सो किड्स, आप जो है पिक्चर्स 2 वे में आप इंसर्ट कर सकते हैं. आप अपनी फाइल में से कर सकते हैं, डायरेक्टली इंटरनेट से कर सकते हैं. सबसे पहले हम रीड करेंगे कि कैसे जो है आप फाइल में से इमेज को इंसर्ट कर सकते हो अपनी प्रेजेंटेशन में. स्टेप्स. 1. Take the cursor where you want to insert a picture on the slide. So kids, जहाँ स्लाइड पे आप पिक्चर को इंसर्ट करना चाहते हैं वहाँ सबसे पहले आप अपने कर्सर को प्लेस करेंगे. 2. Click on the Insert tab. Click on the Pictures button in the Images group. And kids, उसके बाद आप Insert tab में जाएंगे. वहाँ पे जो है Pictures button पे क्लिक करेंगे which is in the Images group. 3. A dialog box will appear. एंड उसके बाद जो एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा आपकी स्क्रीन पे. 4. ब्राउज टू द लोकेशन वेयर यू हैव सेव्ड योर पिक्चर फाइल. एंड आप उस लोकेशन पे ब्राउज करेंगे जहाँ पे आपने अपनी जो है डिजायर्ड पिक्चर को सेव करा है. 5. सेलेक्ट द डिजायर्ड पिक्चर एंड क्लिक द इंसर्ट बटन. एंड फिर वहाँ से आप अपनी डिजायर्ड पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे एंड उसके बाद जो है इंसर्ट बटन पे क्लिक करेंगे. 6. द पिक्चर विल अपीयर ऑन द स्लाइड. एंड उसके बाद जो है आप स्लाइड पे जो है आपकी पिक्चर जो है अपीयर हो जाएगी. एंड किड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं अबाउट द इंसर्टिंग द पिक्चर, कैसे जो है एक पिक्चर जो है एक स्लाइड पे प्रेजेंट हो रही है. फॉलो द गिवन स्टेप्स टू इंसर्ट एन इमेज फ्रॉम द इंटरनेट. अब आप इंटरनेट से कैसे जो है इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं उसके स्टेप्स देखते हैं. स्टेप्स. 1. टेक द कर्सर वेयर यू वांट टू इंसर्ट अ पिक्चर फ्रॉम द इंटरनेट. एंड आप जो है वहाँ पे कर्सर को प्लेस करेंगे जहाँ पे आप इंटरनेट से पिक्चर को इंसर्ट करना चाहते हैं. 2. क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब. क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो इन द इमेजेस ग्रुप बिलो द पिक्चर बटन. एंड किड्स, फिर जो है आप इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे. वहाँ पे जो आप ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे इन द इमेजेस ग्रुप पे जो कि पिक्चर्स बटन के नीचे है. 3. क्लिक ऑन द ऑनलाइन पिक्चर्स बटन. फिर आप जो है ऑनलाइन पिक्चर्स बटन पे क्लिक करेंगे. 4. A dialog box will appear. Type the name of the picture you want to search in search item name and then press enter. उसके बाद किड्स एक डायलॉग बॉक्स जो है आपकी स्क्रीन पे अपीयर होगा. वहाँ पे जो है आप अपने डिजायर्ड पिक्चर का नेम जो है टाइप करेंगे. कहाँ पे? इन सर्च आइटम नेम पे. एंड उसके बाद आप एंटर की प्रेस करेंगे. 5. रिलेटेड पिक्चर्स विल अपीयर. एंड उस नेम से रिलेटेड जितनी भी पिक्चर्स होंगी वो अपीयर हो जाएंगी. 6. सेलेक्ट द डिजायर्ड पिक्चर एंड क्लिक ऑन द इंसर्ट बटन. उसके बाद जो है आप अपनी डिजायर्ड पिक्चर को चूज करके सेलेक्ट करेंगे एंड इंसर्ट बटन पे क्लिक करेंगे. एंड किड्स, यहाँ पे देख सकते हैं इंसर्टिंग ऑनलाइन पिक्चर्स. यहाँ पे जो है आप अपना नेम टाइप करेंगे रिलेटेड टू द पिक्चर एंड उसके बाद जो है आप चूज करने के बाद इंसर्ट बटन पे क्लिक करेंगे. रीसाइजिंग पिक्चर्स. The size of the images can be increased or decreased. Follow the given steps to resize the image. So kids, हम जो है पिक्चर्स का जो है साइज भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं. क्या स्टेप्स हैं वो देखते हैं. स्टेप्स. 1. क्लिक ऑन द इमेज. सबसे पहले आप इमेज पे क्लिक करिए. 2. साइजिंग हैंडल्स विल अपीयर अराउंड द एजेस ऑफ द पिक्चर. एंड उसके बाद जो है पिक्चर के एजेस पे जो है स्लाइसिंग हैंडल्स जो है अपीयर हो जाएंगे. 3. मूव द माउस पॉइंटर ओवर अ सिजलिंग हैंडल. एंड फिर जो है आप सिजलिंग हैंडल के ऊपर जो है माउस पॉइंटर को मूव करेंगे. 4. द शेप ऑफ द कर्सर विल चेंज टू अ डबल हेडेड एरो. एंड फिर उसके बाद जो है आपकी कर्सर का शेप चेंज हो जाएगा
to the double-headed arrow में. 5. While holding the mouse button, drag the mouse inwards to decrease or outwards to increase the size of the picture. So kids, अगर आप अपनी पिक्चर का साइज जो है इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप जो है माउस बटन को होल्ड करते हुए आउटसाइड की टूवर्ड्स जो है उसको लेकर जाएंगे, ड्रैग करेंगे. एंड अगर आप अपनी पिक्चर की साइज को छोटा करना चाहते हैं तो आप जो है माउस को ड्रैग करेंगे इनवर्ड्स की साइड. 6. Release the mouse button once the picture is resized as desired. एंड जैसे ही आपकी पिक्चर जो है रिसाइज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू यू, उसके बाद जो है आप माउस के बटन को रिलीज कर देंगे. मूविंग पिक्चर्स. द पोजीशन ऑफ द पिक्चर्स कैन बी चेंज्ड. फॉलो द गिवन स्टेप्स टू चेंज द पोजीशन ऑफ द पिक्चर. सो किड्स, आप जो है पिक्चर्स की पोजीशन को भी चेंज कर सकते हैं. उसके कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, वो हम रीड करते हैं. स्टेप्स. 1. Click on the image. सबसे पहले आप इमेज पे क्लिक करिए. 2. Sizing handles will appear around the edges of the picture. And पिक्चर के एजेस पे जो है साइजिंग हैंडल्स जो हैं अपीयर हो जाएंगे. 3. Move the mouse pointer over a sizing handle. एंड उसके बाद जो है आप साइजिंग हैंडल के ऊपर जो है माउस पॉइंटर को मूव करेंगे. 4. The shape of the cursor will change to a 4-headed arrow. एंड फिर आपका जो है कर्सर का शेप जो है चेंज हो जाएगा 4-headed arrow में. 5. By holding the mouse button, drag the mouse in the required direction. एंड उसके बाद जो है आप माउस बटन को होल्ड करके जो है ड्रैग करेंगे उस पिक्चर को उस एरिया पे, उस लोकेशन पे जहाँ आप उसको मूव करना चाहते हैं. 6. Release the mouse once the picture is positioned. एंड उसके बाद जब पिक्चर जो है पोजिशन हो जाएगी न्यू प्लेस पर, फिर आप जो है माउस को रिलीज कर देंगे. एंड किड्स, हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ अ मूविंग पिक्चर. एंड यहाँ पे जो है इस पिक्चर के आसपास जो है एजेस बने हुए हैं जिसकी हेल्प से जो आप पिक्चर को मूव करते हैं. एडिंग कलर टू द बैकग्राउंड ऑफ अ स्लाइड. अब किड्स, आप जो है स्लाइड के बैकग्राउंड में कैसे कलर्स को ऐड कर सकते हैं. देयर आर मेनी वेज ऑफ सेटिंग बैकग्राउंड कलर इन अ स्लाइड. लेट्स लर्न अबाउट द फॉलोइंग वेज. सो इसके जो है काफ़ी सारे वेज होते हैं, उन वेज के बारे में हम देखते हैं. यूजिंग द थीम्स ऑप्शन. आप जो है थीम्स ऑप्शन को चूज करके भी जो है स्लाइड का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो. फॉलो द गिवन स्टेप्स टू ऐड अ बैकग्राउंड स्टाइल यूजिंग द थीम्स ऑप्शंस. स्टेप्स. 1. क्लिक द डिजायर्ड स्लाइड. सबसे पहले जो आप डिजायर्ड स्लाइड, जिस स्लाइड का आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करेंगे. 2. क्लिक ऑन द डिजाइन टैब. इन द थीम्स ग्रुप चूज द थीम्स यू वांट टू अप्लाई. एंड फिर किड्स, आप जो है क्लिक करेंगे डिजाइन टैब पर. वहाँ आप जाएंगे थीम्स ग्रुप पर एंड वहाँ पे काफ़ी सारे थीम्स के आपको ऑप्शंस मिलेंगे. वहाँ से जो है आप अपना डिज़ायर्ड थीम चूज कर सकते हो. एंड किड्स, हियर इज द पिक्चर ऑफ अप्लाइंग थीम्स. आप जो है डिज़ाइन टैब पे जाएंगे एंड दिस इज द थीम्स ग्रुप. एंड यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिलेंगे, आप कोई भी डिज़ायर्ड वन चूज कर सकते हो. यूजिंग द सॉलिड फिल ऑप्शन. अब आप सॉलिड फिल ऑप्शन को चूज करके भी बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो. Follow the given steps to add a background style using the solid fill options. Steps. Select the format background button from the design tab. So kids, सबसे पहले जो आप डिजाइन टैब पे जाके जो है सेलेक्ट करेंगे फॉर्मेट बैकग्राउंड बटन को. 2. In the format background pen, choose solid or gradient fill. एंड वहाँ पे जो है आप फॉर्मेट बैकग्राउंड पेन पे जाके जो है चूज करेंगे सॉलिड को या ग्रेडियंट फिल को. 3. Choose the desired color option. फिर जो है आप जिस कलर में चाहते हैं उस डिजायर्ड कलर ऑप्शन को चूज करेंगे. 4. The color of the slide changes. एंड फिर जो है आपका कलर चेंज हो जाएगा. Select apply to all on the format background pane if you want all slides to have the same background color. एंड किड्स, अगर आप चाहते हैं कि सारी स्लाइड्स का जो है बैकग्राउंड कलर सेम हो तो आपको क्या करना है, आपको जो है करना है सेलेक्ट अप्लाई टू ऑल द फॉर्मेट बैकग्राउंड पेन. सो आप जो है सेलेक्ट अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करेंगे फॉर्मेट बैकग्राउंड पेन पे. एंड इससे क्या होगा, आपकी सारी स्लाइड्स का जो है कलर चेंज हो जाएगा इन दी सेम कलर. एंड किड्स, यहाँ पे जो आप पिक्चर को देख सकते हैं अबाउट द अप्लाइंग थीम्स. नेक्स्ट इज यूजिंग द पिक्चर और टेक्सचर फिल ऑप्शन. Follow the given steps to add a background style using the solid fill options. Steps. 1. Select the format background button from the design tab. सबसे पहले जो है डिजाइन टैब पे जाएंगे एंड फॉर्मेट बैकग्राउंड बटन को क्लिक करेंगे.
2 in format background pane choose picture or texture fill एंड वहाँ जाके जो आप चूज पिक्चर करेंगे या टेक्सचर फिल को चूज करेंगे। 3 चूज अ पिक्चर इन द इंसर्ट पिक्चर एंड फिर जो है आप इंसर्ट पिक्चर में जाके जो है पिक्चर को चूज करेंगे। 4 browse and select the picture you want to apply on the slide and press the insert button एंड जो डिजायर्ड पिक्चर आप अपने बैकग्राउंड में इंसर्ट करना चाहते हैं आप उसको ब्राउज करके सेलेक्ट करेंगे एंड देन आप जो है इंसर्ट बटन पे प्रेस करेंगे। 5 the chosen picture will be applied as a background to the slide एंड फिर जो है आपकी chosen picture जो है अप्लाइड हो जाएगी आपकी स्लाइड्स पे एज अ बैकग्राउंड इमेज। एंड किड्स here you can see the picture of applying background. Slideshow. Slideshow is a series of slides which displays all the slides on the screen one by one. So kids, slideshow क्या होता है? Slideshow जो होता है सारी slides की सीरीज होती है जो कि डिस्प्ले की जाती है वन बाय वन स्क्रीन पर। The slideshow should be previewed so that any necessary modifications may be made before it is finalized. So kids, slideshow जो है हमेशा उसको प्रीव्यू करना चाहिए, मतलब उसे एक बार पहले देख लेना चाहिए so that कुछ भी necessary errors या कुछ भी changes है, modifications हम उसमें कर सके before finalizing it. Remember it. Use the F5 key to view the slideshow. सो किड्स आप जो है स्लाइड शो को देखने के लिए कौन सी की का यूज कर सकते हो? यू कैन यूज दी F5 की। फॉलो द गिवन स्टेप्स टू व्यू द स्लाइड शो। स्टेप्स 1 क्लिक ऑन द स्लाइड शो टैब। सबसे पहले जो आप स्लाइड शो टैब पे क्लिक करेंगे। 2 सिलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ इन द स्टार्ट स्लाइड शो ग्रुप। सो इनमें से आप कोई भी ऑप्शन को चूज करेंगे। ए फ्रॉम बिगनिंग स्टार्टिंग द प्रेजेंटेशन विद द फर्स्ट स्लाइड। अगर आप अपनी स्लाइड शो में प्रेजेंटेशन जो है फर्स्ट स्लाइड से करना चाहते हैं तो आप जो है फ्रॉम बिगनिंग पे चूज करेंगे। बी फ्रॉम करंट स्लाइड एंड स्टार्टिंग द प्रेजेंटेशन विद द करंट स्लाइड एंड जो भी आपकी करंट स्लाइड है आप उससे अपनी स्लाइड शो करना चाहते हैं तो आप जो है करंट स्लाइड में से कर सकते हो। सी कस्टम स्लाइड शो starting the presentation with only the selected slides. And kids, अगर आप कुछ selected slides का ही slide show करना चाहते हो तो you will choose the option custom slide show. Kids IQ. You can add only 50 slides in one presentation, said Mayank. Do you think Mayank is right? So kids, इस क्वेश्चन में क्या है? मयंक को लगता है कि हम एक प्रेजेंटेशन में से 50 slides ही डाल सकते हैं। So is Mayank right or wrong? So the answer is Mayank is wrong because we can add n number of slides in the presentation. Let's recall. PowerPoint 2016 helps you to create beautiful presentations. Slideshow is a series of slides which displays all the slides on the screen one by one. So kids, PowerPoint 2016 जो है एक ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन बनाने में हमें हेल्प करता है एंड स्लाइड शो क्या है? स्लाइड शो जो है सीरीज ऑफ स्लाइड्स है जो कि डिस्प्ले किए जाती है स्क्रीन पे वन बाय वन। अ प्रेजेंटेशन इज मेड अप ऑफ अ सीरीज ऑफ स्लाइड्स एंड एक प्रेजेंटेशन जो है कैसे बनती है? जब बहुत सारी सीरीज ऑफ स्लाइड्स होती है। The size of the image can be increased or decreased. So kids, presentation में हम जो भी images को insert करते हैं उसका हम size increase और decrease कर सकते हैं। Pictures have more visual impact than text. And pictures का ज़्यादा अच्छा impact होता है as compared to text. Upskill your intelligence. A. Fill in the blanks. 1. Dash is a series of slides which displays all the slides on the screen one by one. Answer is slideshow. 2. We can delete the slides in the dash view or in the dash view. Answer is normal and slide sorted. 3. A dash is made up of a series of slides. Answer is presentation. 4.
4. Select apply to all on the dash if you want all slides to have the same background color. Answer is format background pane. Five. Release the dash once the picture is positioned. Answer is mouse. B. Match the following. 1. Slideshow. The answer is F5. 2. New slide. The answer is Ctrl plus M. 3. Save as. The answer is F12. 4. Quit. The answer is Ctrl plus Q. 5. Open. The answer is Ctrl plus O. C. Write T for true statements and F for false statements. 1. We cannot resize an image in MS PowerPoint. False. 2. The from the beginning starts the slideshow from the current slide. False. 3. We can select the format background button from the design tab. True. 4. Themes and pictures can be applied to a presentation. True. 5. Home tab is used to insert a picture from a file. False. D. Pick the correct option. 1. Which tab is used to add a font color in the text? Options are A. Design, B. View, C. Home, D. Insert. The correct answer is C. Home. 2. Which tab contains all the options to change the background of a slide? Options are A. Format, B. Design, C. Slideshow, D. Animations. The correct answer is B. Designs. 3. While resizing the picture, the shape of the cursor will change to a dash. Options are A. Single-headed arrow, B. Flower, C. Double-headed arrow, D. Pointer. The correct answer is C. Double-headed arrow. 4. Making changes in the text's appearance is referred to as A. Formatting, B. Viewing, C. Resizing, D. Moving. The correct answer is A. Formatting. 5. Which of the following shows the smaller version of the slide? Options are A. Normal view, B. Slide view, C. Outline view, D. Slide sorter view. The correct answer is D. Slide sorter view. E. Answer the following questions. 1. Write the steps to insert a new slide in a presentation. The answer is step number 1. Click on Home tab. 2. From Selects group, click on the New Slides. 3. Select the desired slide from the All Slides. Step 4. New slide will be inserted in the presentation. 2. What do you mean by slideshow? The answer is slideshow is the series of slides which displays on the screen one by one. 3. How can we move a picture in the presentation? So kids, there are total 6 to 7 steps which we have studied in the detail in the chapter to move a picture in the presentation. So to write this answer, refer to the chapter. 4. What do you mean by formatting? The answer is formatting means changing the text appearance into different colors and sizes and styles to look it more attractive and readable. 5. How would you insert online pictures in your presentation? So kids, the steps which are used to insert online pictures in a presentation, we have already discussed in detail while reading the chapter. So refer the chapter to write this answer. Critical thinking. A. Raman's teachers has given him the steps for opening a presentation, but they are not in order. Number them in the proper order to help Raman. So kids, इस क्वेश्चन में क्या है, रमन की टीचर ने जो है उसको काफ़ी सारे स्टेप्स दिए हैं हाउ टू ओपन अ प्रेजेंटेशन, बट वो जो है करेक्ट ऑर्डर में नहीं है. सो वी हैव टू मेक इट अ करेक्ट ऑर्डर. So kids, to open a file in the presentation, the
So kids, the first step is click on the File tab. So we'll number it as 1. The second step is select the Open command from the left pane. So we will number it as 2. The third step is locate and select the presentation you want to open. So we will number it as 3. And the last step is click on the Open button. We will number it as 4. So the correct sequence is 2, 4, 3, 1. B. Niharika has made slides on water pollution. She forgets to add the background to the slides. Suggest the way how to add slides with the background. So kids, इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि एक प्रेजेंटेशन में किन स्टेप्स को फॉलो करके जो है हम स्लाइड्स में बैकग्राउंड को ऐड कर सकते हैं. सो द फर्स्ट स्टेप इज क्लिक द डिजायर्ड स्लाइड. Second step is click on the Design tab. Step 3 is from the themes group, select the particular theme. Four, the background gets changed. Teamwork. In the previous chapter, you created 10 slides on global warming. Now add more slides using background and formatting learned in this chapter. सो किड्स, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपने जो है लास्ट चैप्टर में ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर 10 स्लाइड्स को क्रिएट किया था. अब आपको जो है इस क्वेश्चन में क्या करना है, उसी सेम प्रेजेंटेशन में जो है और स्लाइड्स को जो है आपको ऐड करना है और ज़्यादा स्लाइड्स बनानी है एंड इसमें जो है बैकग्राउंड फीचर भी ऐड करना है एंड स्लाइड्स के टेक्स्ट को भी फॉर्मेटिंग करना है. सो किड्स, यू विल डू दिस एक्टिविटी ऑन योर ओन.